Hello everyone, my name is Akshay Madan and this is my very first travel vlog. So bear with me and needless to say, if you like it, please do share with your friends and do subscribe the channel. So जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, this video is about Vietnam and how to plan a trip to Vietnam. This video cover all the aspects that you need to know for your trip or maybe planning your trip to Vietnam. And apart from the things that are normally mentioned in a travel vlog, we have some unique different sections in this particular vlog, which are things no one tells you, cleanliness, and is it worth it. I put timestamps for different sections so that जो section आपको ज़्यादा intrigue या ज़्यादा interest करे, you can reach to that directly, as how the timestamps work. Now, I've also mentioned all the hotel links and the tours that I took, those links as well, and also my Instagram handle as well, ताकि आप जो हैं मेरे Instagram पे जाके highlights के through थोड़ा better देख पाए how Vietnam actually looks like or what's the realistic expectation that you should have about Vietnam, because in my stories there are no filters or no editing much, it's live and everything. So let's begin. So the first section is best time to visit. वियतनाम के लोग ऐसा खुद कहते हैं that Vietnam has only two seasons, hot and hotter, गर्म और बहुत गर्म. Also, Vietnam is an S-shaped country, which means that different regions will be having different climates because of locations of different regions being in S-shaped, as I mentioned. तो इससे क्या हो जाता है, there is no particular dedicated month or you can say fixed time कि हाँ भाई तो इस टाइम चला गया, पूरी कंट्री में बहुत अच्छा मौसम है. So there is no particular dedicated month for Vietnam कि to go visit in this month and you will every region of Vietnam will be good for you. I went in May, जो कि it is supposed to be a rainy season there, and to my luck or I was fortunate enough कि बारिश या तो सिर्फ मेरे उठने से पहले हो रही थी या मेरे सोने के बाद हो रही थी 12-1 बजे के बाद. ऑल्सो बारिश ये नहीं कि रोज हो रही थी, सिर्फ 2-3 दिन बारिश हुई है. इट वॉज नॉट अ रेगुलर थिंग. सो आई वॉज लकी इनफ टू बी ऑनेस्ट, और आई डोंट नो, बट आई डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट मच रेन. बट येस, इट वॉज ह्यूमिड एंड हॉट इन जनरल इन ऑल द प्लेसेस आई वेंट टू. दैट इज वन. ऑल्सो किसी भी जगह अगर हम जाते हैं तो इट इज सजेस्टेड एंड इट इज ऑल्सो लाइक गुड फॉर अस एज वेल कि उस महीने में जाओ जो शोल्डर मंथ्स होते हैं. शोल्डर मंथ्स क्या होते हैं? जो पीक सीजन के स्टार्टिंग के या पीक सीजन खत्म होने के बाद वाले 1-2 महीने होते हैं, दोज आर शोल्डर मंथ्स बेसिकली. तो अब उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा या दुबई के जो जाने का टाइम है, सीजन यू कैन से इज नवंबर टू फरवरी, ठीक है. बट इनके शोल्डर मंथ्स क्या हो जाएंगे अक्टूबर एंड मार्च. तो दीज आर द बेस्ट टाइम्स क्योंकि आप अपनी डील्स वगैरह अच्छे से ले सकते हो होटल्स पे, फ्लाइट्स पे. They are cheaper comparatively and less crowds as well, and you are enjoying the weather as well. Basically best of both worlds you can say. Thirdly, so वियतनाम के लिए अब जो आता है, जो शोल्डर सीजन कहा जाता है, it's like April to June or September to November. So accordingly the best time to visit are these months only. Next thing is visa. So fortunately as Indian passport holders, वियतनाम के लिए हमें ई वीज़ा चाहिए, which is like one of the few countries जहाँ पे हमें easily visa available है. You just apply, you get the visa from in like 2-3 days from the embassy or something like that. You will get an email directly from the Vietnam government or the website you can say. अब वीज़ा के केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि I have heard cases like कहते हैं कि 2-3 दिन में आ जाता है. मेरा खुद का 1 हफ्ते बाद आया था. I have heard cases जहाँ पे 12-15 दिन तक भी नहीं आया because there are multiple issues regarding photos and what not. So please make sure आपका documentation ठीक है. Documentation इसमें अभी सबसे कम है. So please make sure आपका documentation ठीक रहे and apply timely ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथ रहे. Also if you want to get good deals basically, तो उस केस में आपको महीना पहले अप्लाई कर लेना चाहिए ताकि आपकी टिकट्स और होटल्स वगैरह सब आराम से आपको मिल जाए. Now coming to flights. अब फ्लाइट्स के केस में मेरा क्या था, आई बुक वियतनाम एयरलाइंस. आई वॉज चेकिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट कैरियर्स एज वेल. सो आई थिंक वेटजेट एंड वियतनाम एयरलाइंस हैव द बेस्ट रेट्स. बट वेटजेट के केस में ये रहता है कि उसमें लगेज नहीं होता. तो जैसे आप उसमें लगेज ऐड करते हैं, जो उसका प्राइस होता है
वो वियतनाम एयरलाइंस के बराबर का आ जाता है, मेकिंग इट मोर और लेस इक्विवेलेंट। और ऐसा भी केस देखे इसमें वेट जेट महंगा होता है, एंड वेट जेट में फिर खाना भी नहीं होता। हमें आई ट्रैवल्ड इन वियतनाम एयरलाइंस एंड द सर्विसेज वर वाओ, दे वर रियली गुड। जो आपको बैठते वेट टिश्यूज मिलते हैं, प्रॉपर खाना सर्व होता है, एंड देयर आर बिग स्क्रीन्स एज वेल, कंफर्टेबल सीट्स, यू गेट ब्लैंकेट एंड व्हाट नॉट। मैं लास्ट ईयर जापान गया था कैथे पैसिफिक में, एंड मुझे उसकी और वियतनाम एयरलाइंस की सर्विसेज काफ़ी बराबर की लगी। सो इट इज़ गुड। सो अगर आपको वो वियतनाम एयरलाइंस मिले, प्लीज़ डू प्रेफर दैट। ऑल्सो जैसे मेरी फ्लाइट्स इंटरनल भी थी और इंटरनेशनल भी थी, विद इन द कंट्री भी मैंने इंटरनल फ्लाइट्स थी, वो भी मैंने वियतनाम एयरलाइंस की ली थी। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कैरियर्स थे, जैसे कि वेट ट्रैवल, बैम्बू एयरवेज, समथिंग लाइक दैट। तो अब उस केस में क्या था, उसमें भी लगेज नहीं था। अब लगेज नहीं था, जैसे ही मैं प्राइस ऐड करता था, इट वाज इवन एक्सीडिंग द प्राइस ऑफ वियतनाम एयरलाइंस, जिसमें ऑलरेडी लगेज था। सो प्लीज लुक आउट कि आप क्या पे कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। दैट इज फ्लाइट्स। नाउ कमिंग टू करेंसी। For currency, I will strongly recommend that buy US dollars from India, and वहाँ जाके आप चेंज करवा लो थोड़े से एयरपोर्ट पे और बाकी सिटी में। मैंने ये गलती करी, मैंने थोड़े से डोंग्स यहाँ से ले लिए, बट दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव जो मुझे लगे कंपैरेटिवली रेट। यहाँ से मैंने डॉलर्स भी कुछ लेके गया था, वहाँ जाके मैंने चेंज करवाए, एंड द रेट आई गॉट, और जो फिर अल्टीमेटली कन्वर्जन आया लाइक फ्रॉम रुपीज टू डॉलर एंड डॉलर टू डोंग, और जो मैं यहाँ से डायरेक्टली डोंग लिए, वो बहुत डिफरेंस था। तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ तक मेरा आइडिया है, आई थिंक 300 के डोंग मुझे डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन में पड़े, कन्वर्जन में 300 समथिंग के, एंड वैसे 200 समथिंग के पड़े थे। सो देयर वर क्वाइट डिफरेंसेस इन द प्राइस। तो यहाँ से आप डॉलर लेके चाहिए, और वहाँ एयरपोर्ट पे थोड़ा सा चेंज कर ले, बिकॉज आपको टैक्सी और इनिशियल कुछ खर्चों के लिए चाहिए। बाकी आप वहाँ पे देयर आर डिफरेंट शॉप्स, टू बी ऑनेस्ट मेनी शॉप्स, वेरी लाइक streets are filled with currency conversions, tour operators and those things only. But pick at least survey 2-3 shops so आपको best rates मिल जाए, because मैंने करा था and I really got a good rate there as well. So the next point is SIM cards. For Vietnam, I will not suggest to use Airlo or similar apps जो आपको फोन में ऐप डाउनलोड करो और आपको इससे मिल जाए, because in Vietnam there will be multiple instances where you will be required to make phone calls or receive phone calls, so you need the cellular connectivity, which is not available in those eSIMs which are from the apps. The other option you can go is through like take the data roaming from Airtel, Vodafone, which is expensive in my opinion. And now comes to the third and the best option, buying SIM from Vietnam only. In that also we have two options, either आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से ले लो, या आप वियतनाम सिटी सेंटर, मतलब जो फॉर एग्जांपल पहली सिटी जो भी होगी उसके सिटी सेंटर से ले लो। अब अगर आप एयरपोर्ट से लेते हो तो देयर इज वन थिंग, यू प्रेफर द ब्रांड वेटेल, विच इज ऑल्सो साउंड्स लाइक एयरटेल, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइक पॉपुलर ब्रांड देयर, एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कैरियर्स दैट प्रोवाइड्स eSIMs, which is very important to iPhone users. तो VTEL का सिम आप प्रेफर करें, एंड बाय फ्रॉम, आई विल सजेस्ट बाय फ्रॉम द सिटी सेंटर। एंड सिटी सेंटर में भी जो VTEL का अपना शोरूम है, जैसे हमारे यहाँ वोडाफोन एयरटेल के शोरूम्स होते हैं, तो वहाँ जाके आप VTEL के शोरूम से ले लो, वो बेटर है। बिकॉज जो वहाँ एयरपोर्ट का प्राइस तो महंगा होता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, एंड जो इवन इन द सिटी जो आसपास के लोकल शॉप वेंडर्स जो सिम बेच रहे हैं, एक तो eSIM बहुत कम के पास होता है, और दूसरा eSIM इसका होता है दे चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, जो कि कई बार एयरपोर्ट प्राइस से महंगा होता है। तो अगर आपको सिटी सेंटर से लेना है तो VTEL के शोरूम से लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से VTEL का सिम प्रेफर करके eSIM ले लीजिए अपने आईफोन के लिए। अपने एंड्रॉइड के लिए फिर आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, बट VTEL का कैरियर इज वेरी गुड। एक तो नेटवर्क हर जगह आता है, दूसरा eSIM देता है। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आइटनरी। सो किसी भी जगह के लिए इंक्लूडिंग वियतनाम, देर इज नो फिक्स्ड आइटनरी फॉर एनी वन, बिकॉज हर किसी का अपना अपना ट्रैवल स्टाइल होता है, तो हर कोई अपने आइटनरी अपने हिसाब से कस्टमाइज करता है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन ट्रैवल स्टाइल। तो अब वियतनाम के लिए जो क्रिस्प 8 days आइटनरी है, जो कि आपके मेजर चीज़ें कवर कर लेगी, विच इज़ लाइक डे 1
आप पहले होचिमिन सिटी से स्टार्ट करें. दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट हेयर, बिकॉज आई हैव हर्ड, रेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ. अगर आप हानोई से होचिमिन सिटी, बेसिकली नॉर्थ से साउथ का ट्रिप करते हैं, तो जो होचिमिन सिटी है दैट कैन फील अंडरवेलमिंग. However, if you go start from south to north, that is one of the most ideal ways ताकि आप the level of your basically attraction increases slowly. So also I did the reverse from the south to north, Ho Chi Minh City to Hanoi, and I'll suggest a similar pattern to you as well. So to start with, आप फर्स्ट डे अपनी रात को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फ्लाइट होगी आपकी इंडिया से टू हो ची मिन सिटी. वो लेके हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह हो ची मिन सिटी पहुँचेंगे. एक्सप्लोर द सिटी, गेट इन द सिटी वाइब्स. यू कैन विजिट इंडिपेंडेंस पैलेस विच इज़ गुड in a way and okayish also, because okayish in the sense that most of the palace is fine, but there is one particular section जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें दिखाते हैं. It feels like you're in a World War II movie, which actually was good. So for that you can go there. Other things you can see is Saigon Post Office, walking street in the night, which is more about the clubs and nightlife. And so you can all basically immerse in the city for the day one. For day two, there are two options. Either you go to just Chuchi Tunnels, which is a half day tour from Ho Chi Minh City, or you do a Chuchi Tunnels plus Mekong Delta tour, which is a full day tour. So it depends upon your availability, your preference. Mekong Delta is more like mangrove forest that we have in like Pondicherry as well. So it's kind of a similar landscape and similar pattern as well. But Chuchi Tunnel is something different. These are tunnels which the Vietcong soldiers built during their war with the Americans. तो it was a really good experience. आप tunnel के अंदर भी जा सकते हैं. You see what kind of like patterns they were using, what kind of traps they were using, कैसे kitchen थी tunnels के अंदर ही. I was mind blown कि भाई इन्होंने कर क्या रखा है. How even did they do it? You can book this tour by using Get Your Guide or Klook app. I've mentioned the link that I used in the description. For day 3, fly to Da Nang around 9 am or 10 am, but reach the city by 12 pm. Drop your luggage at the hotel because anyway the check-in is not available before 2 pm. So drop your luggage at the hotel only and head straight towards Hoi An, the ancient town. It is like a French or Portugal town which gives like amazing vibes. Walk around the town. You can also go to that wild coconut boat ride and come back to the town like within an hour or so. Experience the market there, experience the cafes there. It is really good, really good. You can also have a bicycle like for yourself throughout that particular town, but it really feels good. The vibe overall is really amazing. But don't come back to Da Nang city without watching the lantern show in the evening, and also experiencing the night market which is around the lantern area only. Now day 4, head towards the like Bana Hills, which is like a day trip for you from Da Nang only. So it will take your entire day. You will be returning to the hotel by 6 p.m, 7 p.m, or maybe late depending on how fast you're doing. But anyway 5 p.m is the time Bana Hills gets closed. Go there, experience the Golden Bridge, experience the European vibes. There are arcades, there are some rides as well for you. There is 4D movie, 5D movie, and other animated things. Now this was like day 5 for you. Sorry, day 4 for you. For day 5, go wake up early in the morning, go to the beach of Da Nang. Mai Khe beach is like one of the most beautiful beaches. The overall vibe is really good. You feel like you're in either in Rio de Janeiro or Miami, Florida. But the vibe, the beauty of this particular beach or this particular like coast is amazing. So go to the beach, enjoy some time in water, sunbathe yourself, and come back, pack yourself, and head towards Hanoi. Take an evening flight or an afternoon flight, land Hanoi by 5 p.m, 5:30 p.m, something like that, and so go to your hotel because it will take 1 or 1.5 hours. It's quite a distance for Hanoi. And then after reaching hotel, your hotel should be in Old Quarter Hanoi, which is
like one of the best locations to live in or to stay at in Hanoi. So take your hotel in Old Quarter. Walk after checking in the into the hotel. Walk towards the Hanoi train street. Meanwhile, your walk, you are experiencing the old quarters, the old vintage vibes, and you reach the Hanoi train street and experience the train passing through the different cafes. Now coming to हानोई का ओल्ड क्वार्टर है, वहीं पे आपकी नाइट लाइफ सबसे ज़्यादा है. देयर इज बियर स्ट्रीट एंड ओवरऑल वो रात को बिल्कुल ही लाइक इट ट्रांसफॉर्म्स टू बी ऑनेस्ट. कमिंग टू डे 6, book a tour for Ninbin, which is one of the most beautiful places I've ever seen. वो आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी. आप चाहे एक दिन एक्स्ट्रा रख लीजिए या किसी और जगह पे आप एक दिन कम कर लीजिए, बट निनबिन इज अ मस्ट विजिट. तो आप निनबिन जाओ, वहाँ पे डेट पूरा सुबह सुबह 7-7:30 बजे आपका टूर शुरू होता है एंड यू रिटर्न बाई 5:36 समथिंग लाइक दैट. बट इट इज़ अ गुड टूर. Go there. I have also mentioned the link of this tour in the description. For day 7, go to the Halong Bay. Now Halong Bay people usually do day tour, which is fine itself, but I will suggest book a one overnight cruise. So there is I think Oasis Bay cruise जो आपको proper like stay भी देता है and there is some night party and day parties as well in that particular cruise. So Oasis Bay cruise is one of them that I know for youngsters for sure. But you should book some overnight cruise only because Halong Bay, especially I think for Indians, is a different kind of landscape. So it's something you want to see for a longer period of time. And I felt like the duration I was there for like 3 to 4 hours was very less. So this covers now this was day 7 and day 8 is like do some local sightseeing in Hanoi, do some shopping, and take an evening flight to home back in India. This covers most of it, but if you have days और आप और ज़्यादा explore करना चाहते हैं तो there is an island Phuoco and or you may go to Sapa which is in the north of Vietnam, from I think it's near Hanoi only, and or you can go to Cat Ba Island which is like an alternative to Halong Bay and less crowded. But Cat Ba Island you can prefer, or you want. Then there is like if you're an adventure seeker, you can go for this biking tour of Hajiang Loop, which is like a biking tour which I think take 3 to 4 days. It's a like group tour. But also if you have less days, you may want to skip Ho Chi Minh City because it's more of a city vibe. The only good thing or one of the like very few good things that I liked about Ho Chi Minh City was the Chu Chi tunnels. सो अगर आपको हिस्ट्री और वॉर्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको चू ची टनल्स भी इतना फैसिनेट नहीं करेंगी. तो यू कैन स्किप हो ची मिन सिटी इफ यू वांट टू, एंड यू बट डू नॉट स्किप दानांग और हनोई. अदर प्लेसेस लाइक दानांग फॉर एग्जांपल द बीच प्लेसेस देयर इज Nha Trang which you may or you may not want to do, but the beaches of Danang is really good. Next section which is I think one of the unique is things no one tells you. अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील की लाइक एक सीरीज बनाई है जिसमें डिफरेंट रील्स है थिंग्स नो वन टेल्स यू. तो उसमें आई मेंशन मल्टीपल थिंग्स फॉर ईच ऑफ द लोकेशंस वेरी स्पेसिफिकली. फॉर एग्जांपल ट्रेन स्ट्रीट के लिए क्या है जो थिंग्स नो वन टेल यू, एंड दनांग के लिए क्या है, होयान के लिए क्या है. फॉर एवरी प्लेस आई हैव बीन इन वियतनाम मैंने एक स्पेसिफिक थिंग्स नो वन टेल्स यू वाली सीरीज बनाई है रील्स के फॉर्म में. तो आप वो देखिए. बट यहाँ पे मैं अभी एक बहुत इन जनरल आइडिया दे रहा हूँ. देयर आर कपल ऑफ लाइक थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन. नंबर 1 इज जब भी आप सिटी में होंगे आपको फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉर्मली तो देयर विल बी मल्टीपल ड्राइवर्स अप्रोचिंग यू कि हम आपको यहाँ ले चलते हैं, हम आपको वहाँ ले चलते हैं. मैं ग्रैब से ही हूँ तो आप डायरेक्टली मुझे ग्रैब की बजाय बुक करने से मुझे डायरेक्टली पे कर दीजिए. आई विल सजेस्ट अवॉइड दैट मेथड. देयर इज सम स्कैमिंग गोइंग इन दैट पर्टिकुलर ट्रैक. आइदर आपको थोड़ा ओवरचार्ज करेंगे, थोड़ा घुमा के ले जाएंगे, गलत जगह ले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट कम्स टू लाइक इट इज इन लाइन विद द ग्रैब ऐप ओनली. तो इसमें क्या रहता है, ग्रैब जो है वहाँ का ऊबर ओला है आप कह सकते हो. तो ग्रैब ऐप में आई हैव सीन मेनी वीडियोज अबाउट इट कि वो बोलते हैं कि ना
फॉर एग्जाम्पल हमें उनके करेंसी नहीं पता क्या डिनोमिनेशन क्या है, 500 है, 5 लाख है, 50 लाख है, बिकॉज वियतनाम की डिनोमिनेशन ऑलरेडी 50,000 5 लाख ऐसे चल रही है, इट्स नॉट लाइक 500,000। और ऑल्सो वहाँ पे कुछ कलर्स भी, कुछ डिनोमिनेशंस जो हैं उनके सिमिलर हैं, तो देर कैन गेट लाइक देर कैन बी सम कन्फ्यूजन फॉर दैट। तो मैंने ऐसे स्कैमिंग सुनी थी कि फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर को अगर 5 लाख का वो नोट दिया उन्हें, तो उसका कलर भी ब्लू है और 50,000 वाले का भी ब्लू है, तो ड्राइवर माइट से कि भाई आपने तो मुझे 50,000 का दिया, 5 लाख का नहीं दिया, तो वो इसलिए 5 लाख का एक और ले लेगा आपसे, ठीक है। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट द बेस्ट मेथड इज आप ऐप में अपना वो कार्ड डाल दीजिए, कार्ड डिटेल्स डाल दीजिए ग्रैब ऐप में, और आप कार्ड पेमेंट ही सेट कीजिए, तो आपको वो सीन ही सेट है कि आपको कोई स्कैम ही नहीं करेगा। आप बोल देंगे डायरेक्टली पेमेंट थ्रू ऐप, नो कैश इन्वॉल्व, नो स्कैमिंग, बेसिकली गेटिंग रिड ऑफ द प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आप डे टूर्स बुक करते हैं उसमें प्लीज अपना एक एक डिटेल थोड़ा ढंग से पढ़ेगा, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, क्या ऑप्शंस आप ले सकते हैं, कौन सा टूर आपको पर्टिकुलरली लेना है। फॉर एग्जांपल निनबिन के लिए देयर आर मल्टीपल टूर्स, कुछ जगह कवर कर रहे हैं, कुछ जगह कवर कर रहे हैं, तो एक बार उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ के आप थोड़ा प्रेफर करें कि आपको हाँ ये देखना है, ये नहीं देखना है। ऐसे करके आप चलोगे तो यू विल बी एबल टू बुक बेटर। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी आप थोड़ा देख सकते हो कि आपको लंच के लिए पे नहीं करना, आप वहां जाके देखोगे क्या हिसाब है क्या नहीं है। बट फॉर निनबिन एंड हालोंग बे लंच इंक्लूड आपको करना ही पड़ेगा, सो दैट इज नॉट समथिंग अवॉइडेबल। फोर्थ पॉइंट इज the clothes in Vietnam are of really good quality and are cheaper than India. वहाँ पे नाइट मार्केट्स लगती हैं वीकेंड्स पे, सो उन्हें मिस नहीं करना। बाय क्लोथ्स, दे आर रियली गुड, लाइक they are of really good quality and are really good prices. So and for both males and females they are really amazing. So clothing और ये shopping miss मत करना, ज़रूर कपड़े लेना, and good fabric, good quality to be honest. These are an overall thing about Vietnam. बाकी things no one tells you is a very detailed section in my Instagram, तो आप वो चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आप वो लिंक ओपन करके थोड़ा डिटेल में देखिए कि अगर आपको निनबिन जाना है तो उसके लिए व्हाट आर द थिंग्स नो वन टेल्स यू। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट, फूड। व्हेन इट कम्स टू फूड, वियतनाम में हर तरीके का खाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ अवेलेबल नहीं है। वीगन इज अवेलेबल, वेजिटेरियन इज अवेलेबल, सो लाइक अगर आपको वेजिटेरियन खाना है, प्रेफर द वर्ड वीगन एंड नॉट वेजिटेरियन, बिकॉज वेजिटेरियन माइट मीन कि एग चलेगा, ठीक है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो वीगन बोले, उन्हें वीगन रेस्टोरेंट में समझ आता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स जो मेजर सिटीज हैं, दनांग, होचिमिन और हनोई, तीनों में भर के अवेलेबल हैं एंड टेस्ट भी अच्छा है। हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स थोड़े से महंगे होंगे कंपेयर टू द वियतनामीज फूड, ठीक है। एंड देयर इज पास्ता, पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इवन इन वेजिटेरियन लाइक ऑप्शंस, जैसे डोमिनोज भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसमें मार्गरीटा तो है वेजिटेरियन में, but there's a proper fully loaded veggies pizza as well for like I think for us only. So that's about food. Also हाँ, अगर उनका लोकल कुजीन है तो वहाँ का वेगन फो है जो मैंने ट्राई करा है, उसमें मेरे को थोड़ी सोया सॉस डालनी पड़ी बिकॉज थोड़ा फ्लेवर कम लग रहा था, बट हाँ ओवरऑल इट वाज गुड। फ्रूट्स आर चीपर, फ्रूट्स आर गुड, आप वो खाइए, अच्छे फ्रूट्स हैं, एक्जॉटिक फ्रूट्स हैं वहाँ पे, तो वो भी आप खा सकते हैं। ऑल्सो होटल में प्रेफर करें कि आप जो बुक कर रहे हैं वो, या हॉस्टल प्रेफर कर रहे हैं वो बूफे वाला लें, सो दैट सॉर्ट्स एटलीस्ट द बिगनिंग ऑफ योर डे। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट एप्स। The most important app, I think one of the most important is like Grab app. It is a combination of Uber and Zomato. So Uber ओला जैसे है तो वैसे ही Grab app है जिसमें आप कैब्स और बाइक राइड सब बुक कर सकते हैं, और Zomato स्विगी वाला भी वो काम करती है। यू कैन ऑर्डर फूड डायरेक्टली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐप, वो आपको दे जाएगा एंड यू कैन पे फ्रॉम द ऐप ओनली। तो आप देख सकते हैं वो क्या खाना है, क्या प्राइस आ रहा है, जैसे हम Zomato स्विगी में करते हैं। एंड देयर सर्विसेज आर वेरी गुड एंड आउटस्टैंडिंग। एक इंसिडेंट मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एक दिन बहुत गंदी बारिश हो रही थी, आई वॉज स्टक इन होयान की, मतलब अभी शुरू ही हुई थी एंड वो बहुत तेज़ होती जा रही थी एंड रात का टाइम हो रहा था, 7-8 बज रहे थे, बट बारिश बहुत थी एंड आई थिंक दनांग एंड होयान अराउंड 40 to 50 मिनट्स अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मैंने ग्रैब ऐप बुक करी, ग्रैब बाइक टू बी मोर स्पेसिफिक,
विच बिकॉज ग्रैब टैक्सी एक तो अवेलेबल भी नहीं हो रही थी, और जब हो रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग आ रही थी. ग्रैब बाइक रीजनेबल रेट पे आ रही थी, एंड द बेस्ट पार्ट इट दे डिड नॉट कैंसल. वो आया बंदा, मुझे लेके गया, पूरा छोड़ गया, एंड ही ब्रॉट अ रेन कोट फॉर मी विच वॉज like good service I guess, but yeah, their services are really good. They do not cancel. That's the best part. They may want you, like they may try to ask at times that they that if we can pay to them through cash, but उन्हें बोल दो कि ऑलरेडी ऐप से डिडक्ट हो चुका है हमारा, तो नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस. ऐसा वो ट्राई करेंगे, बट यू कैन स्किप इट. नेक्स्ट ऐप इज गेट योर गाइड या क्लूक ऐप. आप दोनों ही ऐप से अपने टूर्स, डे टूर्स और ये सब बुक करने के लिए है, तो देख लो, मतलब दोनों भी कर सकते हो, कोई एक कर लो, दोनों के इक्विवेलेंट ही रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टूर्स आर देयर इक्विवेलेंट, बट ये है कि अगर आप एडवांस में बुक कर सकते हो तो यू आर सॉर्टेड. वहाँ जाके बुक करोगे तो इट कैन गेट मेसी, यू आर अनश्योर, यू वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग द राइट टूर गाइड एंड एवरीथिंग. तो जब तक आप इंडिया में हो वहीं से आप बुक कर लो, बट ऐप देख लो कौन सी करनी है. इट्स लाइक 9 more or less the same. Next thing is Google Translate offline. Please download the Google Translate offline. इसमें आपकी वियतनामीज लैंग्वेज डाउनलोड होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो इट विल बी नीडेड बाय यू एट एवरी टाइम. Another important point, budget. So budget, is it really cheap? कितनी वीडियोस देखते हैं हम कि वियतनाम 50,000 में कर लो, 60,000 में कर लो, बट क्या रियलिस्टिक बात है वो जरा करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं. मुझे जो वियतनाम लगा वो इक्विवेलेंट लगा इंडिया के, या इंडिया से थोड़ा महंगा ही लगा. सस्ता कुछ नहीं लगा मुझे इंडिया से, या तो इंडिया के बराबर लगा, इंडिया से महंगा लगा. दैट इज वन. बट फिर भी मैं एक बार अपना बजट ब्रेक डाउन दे दूँ. सो मेरी 4 फ्लाइट्स मेरी टोटल पड़ी 31,000 की. 23 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मान सकते हो इसमें से, और बाकी का 8,000 इज फॉर इंटरनल फ्लाइट्स जो मुझे जरूरत थी फ्रॉम होचिमिन टू दानांग एंड दानांग टू हनोई. नाउ होटल्स के केस में आपका ये रहता है कि मैं थोड़ा होटल्स में 4 या 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहा, जो कि इतने महंगे नहीं थे. टू बी ऑनेस्ट, इंडिया कंपैरेटिवली 4 स्टार 5 स्टार होटल्स आर चीपर. सो मेरे को काफ़ी अच्छी डील्स मिल गई थी, तो मैंने हनोई में हॉस्टल लिया था, बट बाकी जगह मेरे 4 या 5 स्टार होटल्स से. हॉस्टल का रेट अराउंड 400 पर नाइट रहता है, जो कि बढ़ता जाता है डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएंट यू आर टेकिंग, 6 बेड 8 बेड, वो आपके ऊपर है. अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो होटल्स का 2,000 पर नाइट तो आपका एटलीस्ट पड़ता ही है. ठीक है. मील्स, स्ट्रीट फूड ठीक है, बट अगर आपको इंडियन फूड खाना है, वीगन फूड खाना है, वो थोड़ा आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आप 700 पर मील पर पर्सन मान सकते हो. सिटी ट्रांसफर्स, आई यूज बसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स या ग्रैब बाइक, तो कॉस्ट थोड़ी मेरे को कम पड़ी इस केस में, बिकॉज आई वॉज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और या ग्रैब बाइक. अब अगर आप कैब लेते हो तो 1200 से 1500 पर डे की कॉस्ट आप मान सकते हो. वीज़ा जो है वो आपको 2100 की फीस है, वो लाइक देयर इज नो डिडक्शन और डिस्काउंट, इट इज़ फॉर एवरीवन पर पर्सन. साइट सीइंग इंक्लूड्स कि जो आपके एडमिशन टिकट्स है कुछ जगह पे या डे टूर्स हैं, वो सब मिला के टोटल आपका 12K पड़ जाएगा आपको. दिस इज लाइक इफ यू डू बाना हिल्स, निनबिन, हालोंग बे डे टूर और चूची टनल्स, तो आपके 12,000 के अराउंड पड़ेगा. टोटल बजट इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 80,000 पड़ेगा. अगर आप थोड़ा हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो एज कम्पेयर टू मी, कि आप 5 स्टार होटल में रह रहे हो, और आप जो इंटरनल विद इन द कंट्री ट्रैवल है, अगर आप वो बसेस से कर रहे हैं तो वो भी चीपर हो जाएगा. बट मिनिमम लाइक तो आपको 65,000, लाइक 15,000 इससे लेस हो जाएगा आपका मैक्सिमम जो हो सकता है. तो 65,000 तो आपका मिनिमम लगेगा ही लगेगा फॉर वियतनाम. एंड अभी मैं शोल्डर मंथ्स में गया था, सो कीप इन माइंड अगर आप सीजन में जा रहे हो तो ज़्यादा लगेगा. हाँ, और अगर आप इसमें थोड़ा प्रीमियम होना चाह रहे हो कि आप हॉस्टल तो हनोई में भी नहीं करोगे, 4 स्टार 5 स्टार या 3 स्टार होटल भी करोगे और कैब्स ही लोगे, तो टोटल खर्चा जो आपका इसमें आ जाएगा वो आप 1 तो ईजिली मान सकते हो, 1 लाख. नाउ कम्स क्लीनलीनेस. वियतनाम was surprisingly clean. I was shocked. I was not expecting कि वियतनाम clean होगा, but it was clean. It was developed. The roads were well maintained. I have a fear of lizards and cockroaches,
बट मुझे जो ये है, सो आई वॉज वेरी पेक्यूलर एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि मुझे जाना है नहीं जाना, बिकॉज दीज थिंग्स क्रीप मी आउट इन अ वे. बट मुझे एक कॉकरोच दिखा था इन द एंटायर 8 to 9 days ट्रिप इन वियतनाम, वो भी स्ट्रीट पे, एंड दैट वॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द रेन पार्शली. एंड वन लिजर्ड इन द चूची टनल्स एरिया. रेस्ट इट वॉज ऑल गुड. जो मैंने होटल से बुक करे, आई चेक द कमेंट्स एंड एवरीथिंग बिफोर बुकिंग कि उसमें लिजर्ड्स कॉकरोचेस नहीं है, बिकॉज दनांग के केस में काफ़ी होटल्स में आ रहा था. तो टू बी ऑन द सेफर साइड, आप मेरी होटल्स के लिस्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ एज वेल, अगर आपको भी ऐसा कुछ फ्रीक आउट कर जाता है एकदम से. नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी. I found Vietnam to be safe even in night. There are people, minor scamming तो हर जगह होती है, but like people जो like वहाँ के overall लोग हैं वो बहुत kind है, बहुत helpful है. I will give you an example. On the first day जब मैं पहुँचा था हो ची मिन सिटी, मेरा फ़ोन का नेटवर्क मैंने सिटी सेंटर से लेना था. आई टुक द स्क्रीनशॉट कि मुझे बस से कैसे पहुँचना है अपने होटल तक. तो मैं चढ़ गया. देयर वाज वेरी लाइक आई वाज फेसिंग टू मच डिफिकल्टीज. देयर वर पीपल हु आर हेल्पिंग मी, एंड बस में आई कुड नॉट एबल टू फिगर आउट द करेंसी, सो समवन एल्स पेड इट फॉर मी. सो दैट वाज एक्चुअली वेरी काइंड. दैट वाज अ वेरी काइंड जेस्चर. तो ओवरऑल लोग बहुत लाइक अच्छे हैं. थोड़ी बहुत स्कैमिंग तो आई थिंक हर जगह होती है. रात में भी मैंने 11-12 बजे भी क्लब से आ रहा था अकेले. आई डिड नॉट फील एनी थिंग. इट वॉज वेरी सेफ. The real question is it really worth it? The D question. So my answer is yes, it's definitely worth it. If you like natural beauty, अगर आपको unique landscapes पसंद है, it is extremely beautiful. I will definitely recommend this place. On the scale of 0 to 10, with 10 being the most beautiful place, I will rate this place 8.5 out of 10. बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा. हाँ, अगर आपको सिटी वाइब्स ज़्यादा पसंद है या आर्टिफिशियल थिंग्स पसंद है, तो आपको हो ची मिन सिटी में आप एक हफ्ता स्पेंड करके वापस आ सकते हैं. बट ओवरऑल इट वॉज ब्यूटिफुल. Ninh Binh and Halong Bay, the natural beauty they have is like beyond expression. So it is really beautiful. I definitely recommend this place. I think this is it. I have completed my list. So thank you for watching, and if you liked it, please do share and subscribe the channel. Thank you.